Assalamu alaikum. In this lecture, we are going to study about the structure of the DNA. DNA का structure किस तरह से होता है? DNA is called as a deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid. It is one of the type of the nucleic acid. In the introductory part, we have studied how the DNA is taken. How the DNA is proved as a master key of the transfer of the genetic material. डीएनए किस तरह से प्रूव हो गया कि ये मास्टर की है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए. द फर्स्ट साइंटिस्ट दैट वी हैव स्टडीड इज द फ्रेडरिक मिशर. फ्रेडरिक मिशर ने फर्स्ट स्टडी किया था एक एसिड जो कि क्या एसिडिक नेचर का है एंड दैट वाज कॉल्ड एज अ न्यूक्लिन. सो फ्रेडरिक मिशर हैज कॉल्ड दिस वन एज अ न्यूक्लिन. फ्रेडरिक Michel, the scientist who called this one as a nuclein, extracted from the pus cells. Next, then the scientist Altman has derived the term nucleic acid. Altman ने क्या किया? 1899 में ये term derive की, that is the nucleic acid. Nucleic acid contain the which is the content of the nuclein. Nuclein के अंदर क्या present रहता है? Nucleic acid present रहता है. And some proteins are also present in the nucleic acid. And with the protein, some DNA is also present in the nucleic acid. लेकिन nucleic acid ही नाम किसने दिया? Altman ने. Next, the DNA. That term was called by Rasish. The scientist who termed the DNA, who give the molecular formula to this nucleic acid as a DNA. Most of the organisms are having the DNA as a genetic material. बहुत सारे organisms के पास क्या रहता है? DNA as a genetic material present रहता है, except some viruses which are called as RNA viruses. लेकिन कुछ viruses के पास जो है genetic material as a RNA present रहता है. That viruses are called as RNA viruses. One of the best example of the RNA viruses is the tobacco mosaic virus, जिसको हम लोग बोलते हैं TMV. Tobacco mosaic virus, इसके पास RNA as a genetic material present है, लेकिन बहुत ज्यादा organisms के पास जो है DNA as a genetic material present रहता है. Next जो है model, the best accepted model of the DNA was proposed by two scientists, that is the Watson and Crick. Watson and Crick has proposed the model in 1953, which is called as a twisted ladder or double helical model. एक लैडर क्या है? एक सीढ़ी जो है ट्विस्ट हो गई है, इस तरह का मॉडल जो है वैटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए का मॉडल पेश किया था. In 1962, Watson and Crick and his colleague, that is the Walkin, has awarded a Nobel Prize in 1962 for the double helical model of the DNA. उन्होंने बताया कि डीएनए किस तरह से कॉइल रहता है, किस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर डीएनए का प्रेजेंट रहता है. That was done in 1953 by two scientists, Watson and Crick. The model is named according to the scientists Watson and Crick. वैटसन और क्रिक के मॉडल के हिसाब से उन्होंने क्या किया? इसका नाम वैटसन और क्रिक मॉडल दे दिया. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डबल हेलिकल मॉडल. और मैंने क्या बताया कि सभी ऑर्गेनिजम्स में डीएनए प्रेजेंट रहता है एक्सेप्ट इन वायरसेस. दीज वायरसेस आर कॉल्ड एज आरएनए वायरसेस. दे आर हैविंग द आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल. The next thing is that the prokaryotic cells, जो primitive cells हैं, these primitive cells contain the DNA in a circular manner in their cytoplasm. इनके cytoplasm में क्या रहता है? DNA रहता है prokaryotic cells के, क्योंकि इनके पास true nucleus नहीं रहता है. इसलिए जो भी DNA रहेगा that is present inside the cytoplasm and that is circular in nature, which is called as a nucleoid. We have seen the nucleoid in a prokaryotic cell structure in 11th standard. Nucleoid is the circular DNA present inside the prokaryotic cells. लेकिन eukaryotic cells के पास जो रहता है that DNA is the linear DNA. Linear means in a very straight line manner. That is the linear DNA is present inside the nucleus of the eukaryotic
सेल। डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, विच इज लीनियर इन नेचर। बट सम ऑफ द अदर ऑर्गेनिल्स लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो हैविंग देयर ओन डीएनए। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस बॉडी। इस तरह की सेल ऑर्गेनिल्स जिनके पास उनका खुद का डीएनए रहता है, मीन्स क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर द टू सेल ऑर्गेनिल्स हैविंग देयर ओन डीएनए, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिल्स। तो न्यूक्लियस के पास भी रहेगा डीएनए। अगर ये प्लांट सेल है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, इसके अंदर भी इनका खुद का क्या रहेगा? डीएनए प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द डीएनए, इफ यू कंसिडर द ह्यूमन डिप्लॉयड सेल, अगर हम लोग ह्यूमन की डिप्लॉयड सेल्स रहेंगे एंड वी हैव द 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, okay, 2 set of chromosomes are present, diploid cells that contain about the 174 centimeter of the DNA approximately, okay, 174 centimeter of the DNA। अगर हम लोग पूरे सेल्स लेंगे, ऑल सेल्स ऑफ द ह्यूमन फ्रॉम हेड टू टो, जितने भी सेल्स अगर हम लोग लेंगे, अगर इसका डीएनए अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इट इज अबाउट 2.5 into 10⁻10 किलोमीटर। अगर अर्थ के हम लोग 2 चक्कर भी लगा रहे हैं, इट विल कंप्लीट द अर्थ सर्कमफ्रेंस। अर्थ के जो सर्कमफ्रेंस है, अर्थ का पूरा अहाता जो है वो क्या करेगा? ये कंट्रीब्यूट करेगा। सो इट इज वेरी लॉन्ग इन नेचर। सो द लेंथ ऑफ द डीएनए इज वेरी मच लॉन्ग इन नेचर। The next most important thing about the DNA is that the DNA is more chemically stable or reactive. It is structurally stable and reactive. ये क्या है? Structurally stable है and is more reactive. Okay? More reactive क्यों है? क्योंकि इसके डीऑक्सीराइबोज शुगर में सेकेंड पोजीशन पर जो है क्या है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। It is more reactive and structurally it is stable than the other nucleic acid, that is the RNA. RNA से क्या है? काफी स्टेबल है और ज्यादा रिएक्टिव भी है। इसलिए सभी ऑर्गेनिजम्स में, तकरीबन सभी ऑर्गेनिज्म में, कुछ वायरसेस में एक्सेप्ट सम RNA वायरसेस, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं अबाउट द व्हाट इज द केमिकल डेफिनेशन ऑफ द डीएनए। व्हाट इज द केमिकल डेफिनेशन ऑफ द डीएनए? डीएनए मैंने बताया था, इट इज अ डबल हेलिकल मॉडल और ट्विस्टेड लैडर। सो इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड क्या है? इट इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? एक दूसरे से अटैच हो गए हैं। मोनोमर्स जो है न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से अटैच हो गए, क्या बना रहे हैं? एक न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर बना रहे हैं। लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स attached to one another and they are forming a polynucleotide, that is the DNA. Polynucleotide chain consists of several thousand nucleotides as monomers. एक polynucleotide की चेन है, बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से अटैच है, एक लीनियर चेन बना रहे हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए। बट रिमेंबर इन द डीएनए 2 polynucleotides are present. ध्यान दीजिए यहाँ पे डीएनए में क्या रहते हैं? डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। These polynucleotides are called as the strands of the DNA. The 2 polynucleotides are attached to one another by the hydrogen bond. इस तरह से क्या हो गया? Several thousand pairs of nucleotides, monomers are present, and it is a double-stranded polynucleotide chain. Double-stranded 2 strands हैं। इस तरह से 2 strands प्रेजेंट है। ओके, सो दिस इज द होल, और ये दोनों strands क्या है? एक दूसरे से अटैच हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दिस इज द अनदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मीनिंग न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। लेट अस रिवाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए। डीएनए की हम लोग क्या करेंगे? अभी स्पेसिफिक जो है देखेंगे what are the basic constituents of nucleotides of DNA. डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स किन 3 चीजों से बने हुए रहते हैं? न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियोटाइड से बने हुए रहते हैं, मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, बट हियर इन द डीएनए ऑल्सो द डीएनए इज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. So what is the basic constituents of the nucleotides of the DNA? Same, जिस तरह से न्यूक्लिक एसिड के जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बने हुए रहते हैं,
न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बने हुए रहते हैं, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरस. शुगर सेम हियर, दैट इज द पेंटोज शुगर इज प्रेजेंट. यहां पे भी क्या है, पेंटोज शुगर प्रेजेंट रहती है. पेंटोज शुगर C5H10O4. But here the sugar which is present is called as a deoxyribose sugar. Once again I am drawing the structure of the deoxyribose sugar. पेंटागन स्ट्रक्चर है, 5 यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है. दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन इज आउट ऑफ द रिंग. फिफ्थ कार्बन क्या है, आउट ऑफ द रिंग है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, दिस इज द फिफ्थ कार्बन. Okay, so here at the first carbon H and OH is present. In the second carbon H and only H. Make a difference. जो राइबोज शुगर प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे OH रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, H is present. Again H, OH. Again H, OH. Here H2OH. इस तरह से रहता है स्ट्रक्चर ऑफ द पेंटोज शुगर, दैट इज द डीऑक्सीराइबोज शुगर. फिफ्थ कार्बन क्या है, आउट ऑफ द रिंग. एंड द सेकेंड, रिमेंबर द सेकेंड कार्बन कंटेन ओनली द हाइड्रोजन. फिफ्थ कार्बन क्या है, आउट ऑफ द रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है. दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द नाइट्रोजन बेसिस. Again here the 2 types of nitrogen bases are present. These are the organic compounds. Nitrogen bases क्या है, organic compounds है. And there are 2 types. Cyclic compounds है. Okay, 2 टाइप की यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स. प्यूरिन्स किस तरह से है, हम लोगों ने देखा, इट इज द डबल साइक्लिक हेवी मॉलिक्यूल है. Double cyclic heavy molecule and contain the 9 ring compound. एक पेंटागन और एक क्या रहता है, हेक्सागन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है. But here the pyrimidines are, pyrimidines किस तरह से है, these pyrimidines are the single cycle, that is the monocyclic, containing only the hexagon ring. 6 ring compound is present. But remember, अब मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे जो है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहते हैं. पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की एक चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की दूसरी चेन से अटैच रहती है. और किस तरह से अटैच रहती है, वाया द बेस पेयरिंग ऑफ दिस नाइट्रोजन बेसिस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग you have to remember in this one is the base pairing. Is the base pairing. This base pairing is specific in the DNA and is equal in nature. Here the purines are attached to the pyrimidines. Purines क्या है, pyrimidines से attach रहते हैं. Purines are adenine, guanine. Adenine हम लोगों ने क्या किया है, जो है A से एब्रिवेट किया है, कैपिटल A. This is the capital G. Cytosine capital C and thymine is the capital T. This is the C, this is the G and this one is the A. 2 प्यूरिन्स है, एडिनाइन, गुआनाइन. पिरिमिडिन्स जो 3 है, इनमें से सिर्फ 2 ही प्रेजेंट रहते हैं इनसाइड द डीएनए, दैट इज द साइटोसाइन एंड थाइमिन. लेकिन यहाँ पे मैंने बताया कि प्यूरिन्स अटैच रहते हैं पिरिमिडिन से. That is called as a base pairing. Base pairing. Purines are attached to the pyrimidines. Purines attaches to the pyrimidines. And one more thing. Later we will discussing in a Watson and Crick model. Number of purines are equal to the number of pyrimidines. जितने purines रहते हैं डीएनए में, उतने pyrimidines रहते हैं. और प्यूरिन किससे अटैच रहते हैं, पिरिमिडिन से अटैच रहते हैं. और ये क्या रहती है, स्पेसिफिक बेस पेयरिंग रहती है. कोई भी प्यूरिन कोई भी पिरिमिडिन से अटैच नहीं रहेगा. इट इज अ स्पेसिफिक विच इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. इसी को हम लोग नाम देंगे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. ओके, so what happens in the complementary base pairing? In the complementary base pairing, the adenine always attaches to the thymine.
Thymine always attaches to the adenine via the 2 हाइड्रोजन बॉन्ड. 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होते हैं, एडिनाइन थाइमीन से बॉन्ड होते हैं. दिस इज एडिनाइन, डबल स्ट्रक्चर, डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर, जो कि प्यूरिन है, अटैच है पिरिमिडिन से. दिस थाइमीन वाया द 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड. यहाँ पे जो दिखाया है मैंने, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड इज देयर. नेक्स्ट, guanine attaches to the cytosine. यहाँ पे मैंने लिखा है G ट्रिपल बॉन्ड, this is the 1, 2, 3 attaches to the C. Guanine attaches to the C via the 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. 3 यहाँ पे मैंने बॉन्ड दिखाए हैं via the lines. A attaches to the T, 2 हाइड्रोजन bonds. G, that is the guanine, attaches to the C. Guanine attaches to the cytosine via the 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. guanine ये क्या है, प्यूरिन है. साइटोसाइन पिरिमिडिन है. प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स, guanine और साइटोसाइन एक दूसरे से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं. स्पेसिफिक बेस पेयरिंग इस तरह से नहीं होता है कि एडिनाइन आपका बाइंड हो जाएगा साइटोसाइन के साथ. रिमेंबर, एडिनाइन ऑलवेज बाइंड टू द थाइमीन बाय द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड and guanine always bound to the cytosine by the 3 hydrogen bond. This hydrogen bond is a weak hydrogen bond present between the 2 nitrogen bases, and it is a specific bonding between the 2 nitrogen bases, that is the purines and pyrimidines, called as a complementary base pairing. This is called as a complementary base pairing. इस तरह से होती है base pairing inside the डीएनए. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स तैयार होते हैं. So we have discussed about the nucleotides of the DNA, only the nitrogen bases. अब हम लोग देखेंगे about the, ये तो हो गई बेस पेयरिंग नाइट्रोजन बेसिस. नाइट्रोजन बेसिस 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स. एडिनाइन, guanine, साइटोसाइन, थाइमीन. एडिनाइन अटैच होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से थाइमीन से. guanine अटैच होता है साइटोसाइन से 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से. नेक्स्ट है थर्ड कंपोनेंट, दैट इज द फॉस्फोरिक एसिड. फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फोरिक एसिड इज सेम, दैट इज द H3PO4. सेंटर में फॉस्फोरस रहता है, OH इज अटैच्ड, OH, OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O. तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाते हैं अबाउट द 3 एक्टिव OH ग्रुप. 3 एक्टिव OH group. So this is the phosphoric acid or phosphorus which is present inside the nucleotide of the DNA. अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होते हैं. We have seen the formation of nucleotide. न्यूक्लियोटाइड किससे बने हुए रहते हैं, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फोरस. Okay, so here when sugar and nitrogen bases are present, this whole is called as a nucleoside. This whole is called as a nucleoside. तो न्यूक्लियोसाइड और जब फॉस्फोरस एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं तो ये बनाते हैं अबाउट द न्यूक्लियोटाइड. So depending upon the which nitrogen base is attached, the nucleosides are of 4 types. क्योंकि हमारे पास जो नाइट्रोजन बेस कितने प्रेजेंट है, 4 नाइट्रोजन बेस इज प्रेजेंट, दैट इज एडिनाइन, guanine, थाइमीन एंड साइटोसाइन. उसी के हिसाब से यहाँ पे 4 जो है क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियोसाइड्स बनेंगे. अगर 4 न्यूक्लियोसाइड्स हैं तो कितने न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, 4 न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट. सो हियर इफ, let us discuss about the first the formation of the nucleoside. अब न्यूक्लियोसाइड किस तरह से बनते हैं, जब शुगर और आपका नाइट्रोजन बेस अटैच हो जाता है, नाइट्रोजन बेस अटैच हो जाता है. सो हियर शुगर इज द deoxyribose sugar. Deoxyribose sugar. This ribose sugar, if attaches to the adenine, that is the adenine, this nucleoside is called as a
डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी एडिनोसाइन। नेक्स्ट अब क्या हो रहा है, यही डीऑक्सीराइबो शुगर किससे अटैच हो रहा है, कंसिडर दिस इज अटैच्ड टू द guanine, that is called as a deoxyguanosine nucleoside. Okay, this is the nucleoside, so this is the deoxy. नेक्स्ट अभी यही क्या हो रहा है, डीऑक्सीराइबो शुगर अटैच हो रहा है आपके थाइमिन के साथ, दिस इज द थाइमिन वन, दिस इज कॉल्ड एज अ डीऑक्सीथाइमोसाइन, दिस इज द डीऑक्सीथाइमोसाइन। अगेन द डीऑक्सीराइबो शुगर, अगर मैं इस तरह से यहाँ पर अटैच कर रही हूँ डीऑक्सीराइबो शुगर टी के साथ अटैच कर रही हूँ, इंस्टेड ऑफ दैट वन आई एम राइटिंग ओवर हियर और आई एम ड्रॉइंग दिस वन, इस तरह से मैं ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पर क्या है, पेंटोज शुगर, प्रैक्टिस इट इन योर नोटबुक। देन क्या बच गया, AGTC, साइटोसाइन बच गया। देन इट इज द डीऑक्सी साइटोसाइन। तो ये हो गए आपके 4 न्यूक्लियोसाइड, रिमेम्बर इट इज साइड 1, डीऑक्सीएडिनोसाइन, डीऑक्सीगोनोसाइन, डीऑक्सीथाइमोसाइन, डीऑक्सीसाइटोसाइन। ओके, इस तरह से क्या हो गए, 4 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हो गए। ओके, वी हैव सीन। अब क्या होता है, अब मैंने आप लोगों को बताया था किस तरह से ये पेंटोज शुगर है आपका, दिस इज द पेंटोज शुगर एट द फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इज एट अपर साइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन पे जो है नाइट्रोजन बेस अटैच हो जाएगा। ओके, कंसिडर नाइट्रोजन बेस इज अटैच, लेकिन यहाँ पे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, रिवाइज इट, दैट इज द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड which is present between the sugar and this nitrogen base called as a glycosidic bond, glycosidic bond। इस तरह से क्या है, यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट ये क्या बन गया आपका, एक न्यूक्लियोसाइड। इस तरह से क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बन जाते हैं। रिमेम्बर शुगर अटैच हो रही है आपके नाइट्रोजन बेस से, उसी के ऊपर डिसाइड होते हैं आपके न्यूक्लियोसाइड, शुगर न्यूक्लियोसाइड विच आर अटैच्ड बाय द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म्स द न्यूक्लियोसाइड। व्हेन दिस न्यूक्लियोसाइड अटैचेस विद द फास्फोरस ग्रुप, किस तरह से अटैच हो जाएंगे, एट दिस 5th कार्बन प्रेजेंट। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो जाएगा, दैट इज POH OH OH डबल बॉन्ड O। यहां से क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हियर शुगर फॉस्फेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, दिस इज द शुगर फॉस्फोट और फॉस्फोरस और फॉस्फेट बॉन्ड इज देयर। इस तरह से क्या बन गया, ये आपका न्यूक्लियोटाइड बन गया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, उसका नाम किसके ऊपर डिपेंड है, अपॉन द नाइट्रोजन बेस अटैचेस इट। न्यूक्लियोसाइड जिस तरह से 4 बन गए हैं, इसी तरह से अभी हम लोग प्रिपेयर करेंगे द 4 न्यूक्लियोटाइड ऑफ द DNA। हाउ विल यू प्रिपेयर 4 न्यूक्लियोटाइड ऑफ द DNA? अब मैं यहाँ पे नाम जो है थोड़ा सा चेंज करती हूँ, दिस शुड बी द न्यूक्लियोटाइड। एडिशन क्या हो जाएगी, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस phosphorus. Okay, when this deoxyadenosine combines with this phosphorus, it forms the adenosine, deoxyadenosine monophosphate. This is the DAMP. Then again it's combined with the phosphorus. ये होल स्ट्रक्चर जो है किसके साथ कंबाइन हो रहा है, फॉस्फोरस के साथ। ये होल स्ट्रक्चर किसका है, आपका न्यूक्लियोसाइड है। ये किसके साथ कंबाइन हो रहे हैं, फॉस्फोरस के साथ, और क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। देन
गोनोसाइन क्या हो गया, अटैच हो गया फॉस्फोरस के साथ। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ डीऑक्सी गोनोसाइन मोनोफॉस्फेट। देन यहां पे क्या हो रहा है, अगेन थाइमोसाइन कंबाइन हो रहा है फॉस्फोरस के साथ। इट इज फॉर्मिंग द डीऑक्सी थाइमोसाइन मोनोफॉस्फेट। देन अगेन साइटोसाइन कंबाइन हो रहा है फॉस्फोरस के साथ। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ डीऑक्सी साइटोसाइन मोनोफॉस्फेट। इस तरह से हमारे पास जो है क्या हो गए, 4 जो है न्यूक्लियोटाइड्स बन गए, DAMP, DGMP, DTMP एंड DCMP। डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गोनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसाइन मोनोफॉस्फेट। अब ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स जो है किस तरह से एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अटैच हो जाते हैं। 4 nucleotides combines together and form the one polynucleotide. Polynucleotide. Poly means many. Many nucleotides are present. अब आप लोग समझ रहे होंगे कि एडिनाइन पहले आएगा, गोनाइन पहले आएगा, थाइमिन या फिर साइटोसाइन। रिमेंबर देयर इज नो अरेंजमेंट ऑफ दीज nucleotides. Randomly in any number at any place, any number, any place, they are arranged to one another and they form the one polynucleotide. In next one, we are discussing about the structure of one polynucleotide of the DNA. Next इसमें हम लोग देखेंगे structure of one polynucleotide. So in previous lecture, we have discussed about the types of nucleotides. तो कितने न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन नाइट्रोजन बेस। 4 नाइट्रोजन बेसेस रहेंगे तो डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे, 4 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहेंगे। मैंने बताया आप लोगों को कि चारों न्यूक्लियोटाइड्स कितने भी नंबर में रहते हैं, एनी नंबर एंड एनी रैंडम पोजिशन, दे आर अटैचेस एंड फॉर्म अ वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डीएनए? डीएनए इज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से अटैच रहते हैं और क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 चेन्स बनाते हैं। सो फर्स्ट वी आर ड्रॉइंग द न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। कंसिडर दिस वन इज द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, दिस इज द डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो किससे बनता है डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट? डीऑक्सी राइबोस शुगर। कंसिडर दिस वन इज द राइबोस पेंटोज शुगर। इस तरह से पेंटागन आप लोगों को बनाना है। फर्स्ट पोजीशन पे क्या रहता है, नाइट्रोजन बेस अटैच रहता है। नाइट्रोजन बेस हमारे पास क्या है, एडिनाइन इज देयर, सो अटैच द ए, ओके, अटैच द ए। नेक्स्ट एट द 5th पोजीशन, 5th कार्बन, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 5th जो है आउट ऑफ रिंग रहता है, ड्रॉ लाइक दिस एंड अटैचेस द फॉस्फोरस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें रहना जरूरी है। One is the sugar, pentose sugar, that is the deoxyribose sugar, the nitrogen base, and this one is the phosphorus at the 5th carbon. तो ये सारी तीनों चीजें मिलकर क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड। The name of the nucleotide is the deoxyadenosine monophosphate. Likewise, draw the another nucleotide. Same, यहाँ पे आप लोगों को बनाना है पेंटोज शुगर। पेंटागन बनाइए, राइट डाउन द एस इन द मिडल। नेक्स्ट अब क्या है, नाइट्रोजन बेस चेंज होने वाला है, दैट इज द गोनिन। अटैच द जी, राइट द जी। नेक्स्ट 5th पोजीशन पे आप लोगों को क्या ड्रॉ करना है, फॉस्फोरस। लाइक दिस ड्रॉ द 4 न्यूक्लियोटाइड, 4 बेसिक न्यूक्लियोटाइड हम लोगों को क्या करना है, ड्रॉ करना है। नेक्स्ट अबाउट द थाइमिन। And here the last one is the cytosine. This is the cytosine. Okay, attach the phosphorus at the 5th carbon. अब ये तो हो गए हमारे 4 न्यूक्लियोटाइड, दैट इज द DAMP, DGMP, then DTMP and DCMP. These are the nucleotides. अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। So this one nucleotide
is attaches to the another nucleotide. अब क्या होता है, ज्वाइनिंग होती है बिटवीन दीज टू न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म अ वन लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं एज अ मोनोमर, और क्या बनाते हैं, एक बड़ी लॉन्ग चेन क्या बनाते हैं, पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड की बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सो हियर one nucleotide is attached to the another nucleotide via the one bond which is present between the third carbon, which is the third carbon, first, second, this is the third carbon. Between the third carbon यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे जो OH है आपके फिफ्थ कार्बन के नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फोरस के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। फॉस्फोरस ओवर हियर किस तरह से रहता है, फॉस्फोरस अबाउट द POH, double bond O, OH and OH. So here there is a bonding between the phosphorus and the carbon one. किस तरह की बॉन्डिंग रहती है, आई एम शोइंग ओवर हियर। ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे जो OH ग्रुप रहेगा कार्बन पे, इट अटैचेस टू द phosphorus of the next nucleotide via the double OR bond, that is called as a phosphodiester bond. तो दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं via the one bond which is called as a phosphodiester bond. This is the phosphodiester bond. Diester means here two oxygens are present, that's why it is called as a diester bond. यहाँ पे क्या है, दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे डाइस्टर बॉन्ड। इसी तरह से ज्वाइन कीजिए सेकेंड न्यूक्लियोटाइड को थर्ड न्यूक्लियोटाइड से, थर्ड कार्बन फिफ्थ फॉस्फोरस के साथ, अगेन थर्ड कार्बन फिफ्थ फॉस्फोरस के साथ। ओके, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, दिस इज द फर्स्ट पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, डीएनए में क्या रहते हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहते हैं। So we have drawn the one polynucleotide. What is the second polynucleotide? वो किस तरह से ड्रॉ करनी है? The second polynucleotide is anti-parallel. It is the anti-parallel strand of the first polynucleotide. किस तरह का स्ट्रैंड है, एंटी-पैरेलल। एंटी-पैरेलल मतलब क्या, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है it is facing in upward direction. In the next strand we have to draw this pentose sugar facing the oxygen in a downward direction. किस तरह से ड्रॉ करना है, like this. Okay, draw this pentose sugar and here the fifth carbon, this is the first carbon, second, third, fourth and fifth, attaches the P. Next draw the pentose exactly in front of this nucleotide. एक न्यूक्लियोटाइड के आगे ही क्या करना है, आप लोगों को दूसरा न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ करना है। दिस इज द थर्ड न्यूक्लियोटाइड and this one is the fourth nucleotide. Okay, so we have the four nucleotide. अब न्यूक्लियोटाइड को मैंने क्या बताया, अटैच करना है किससे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से अटैच करना है। So attaches this fifth carbon to the third one. क्योंकि यहाँ पे थर्ड कार्बन किसी से नहीं है अटैचमेंट के लिए, यहाँ पे क्या है, फिफ्थ खुला है अटैचमेंट के लिए नेक्स्ट के थर्ड से। ओके, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड कार्बन। ये थर्ड कार्बन अटैच करना है आप लोगों को ऊपर वाले के फिफ्थ कार्बन से वाया द फॉस्फोरस, जिसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। दिस इज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अगेन ज्वाइन दिस वन, ज्वाइन दिस वन। ओके, so here is the next nucleotide. ये क्या हो गई, second nucleotide which is anti-parallel to this first nucleotide. But remember in the DNA these two nucleotides, this is the first nucleotide, this is the second nucleotide, these are attached to one another via the complementary base pairings in the nitrogen bases. अब नाइट्रोजन बेस कहाँ पे अटैच रहते हैं, इनके फर्स्ट कार्बन पे अटैच रहते हैं। तो दिस इज द बेस पेयरिंग, दिस इज द फर्स्ट कार्बन ऑफ द दिस पेंटोज शुगर। ये पेंटोज शुगर का क्या है, आपका फर्स्ट कार्बन है। तो यहाँ पे किस टाइप के नाइट्रोजन बेसेस रहेंगे,
कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस ए, दैट इज द एडिनाइन। एडिनाइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बताया था मैंने आपको? थाइमिन। गुआनिन का कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन। अगेन थाइमिन कॉम्प्लीमेंट्री विद एडिनाइन, गुआनिन साइटोसिन कॉम्प्लीमेंट्री विद गुआनिन। लेकिन एडिनाइन हमेशा थाइमिन से क्या होता है? अटैच रहता है बाय द 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। हम लोग क्या करना है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड को दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड से अटैच करना है इस तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ और कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस पेयरिंग के साथ। ए डबल बॉन्ड टी, अब जी पे मैंने बताया था 3 बॉन्ड रहते हैं सी के साथ, 3 बॉन्ड सी, टी डबल बॉन्ड ए, अगेन सी ट्रिपल बॉन्ड जी। तो इस तरह से क्या हो गए? हमारे 2 जो है क्या बन गए? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गए। So this is the one polynucleotide. Okay, this section is the one polynucleotide. This is the another polynucleotide. So these 2 polynucleotides which are anti-parallel to each other. In which one sugar is facing upward direction, another sugar is facing the downward direction. These 2 polynucleotides are attached to one another via the complementary base pairing of these 2 nitrogen bases. वाया द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरह से 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं। दीज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर कॉल्ड एज अ स्ट्रैंड्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रैंड्स। सो डीएनए हैज द 2 स्ट्रैंड्स, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, दिस वन इज द 1 स्ट्रैंड, दिस वन इज द अनदर स्ट्रैंड। तो इस तरह से 2 स्ट्रैंड्स रहते हैं। 1 polynucleotide is called as a 1 strand, another polynucleotide is called as another strand. और स्ट्रैंड हम लोग दिखाते किस तरह से हैं? लेट अस टेक द कंसिडरेशन। फर्स्ट रिमेंबर इन दिस स्ट्रैंड, अब यहां पे क्या हो रहा है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कार्बन किसी फॉस्फोरस के साथ अटैच नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज लेबल एज अ 3' और 3'। Remember, this is the 3' or 3' end. This is the 3' end. And when this polynucleotide or strand ends, here the 5th carbon or 5th phosphorus is not attached to anything. That's what is called as the 5' or 5' end. Okay. Next, ये strand पे जाएंगे हम लोग. In this, first, second, third carbon is free. That's what is called as the 3' end. Okay. अब ऊपर जाएंगे स्टैंड के, 5th कार्बन क्या है? लास्ट न्यूक्लियोटाइड का 5th कार्बन फ्री है। इट इज कॉल्ड एज अ 5' और 5' end. इस तरह से क्या रहते हैं? 2 जो है न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं? एंटी पैरेलल। अब यहां पे मैं ड्रॉ करती हूँ, दिस आर द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, जिसका नीचे वाला सेक्शन है अबाउट द 3', ऊपर वाला सेक्शन है 5'। इसके अपोजिट में हम लोगों ने लिखा है 3', नीचे क्या है? 5'। लुक एट ओवर हियर, 3' टू 5', इसके अपोजिट में है 3' टू 5', बट इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन। पैरेलल रहता तो यहाँ पे भी क्या रहता? 5', यहाँ पे 3' रहता। लेकिन क्या है? अपोजिट ओरिएंटेशन में, एक क्लॉकवाइज ओरिएंट हो रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज क्या हो रहा है? ओरिएंट हो रहा है। दैट्स व्हाई these 2 polynucleotide, this is the 1 polynucleotide, this is the another polynucleotide, so they are called as the anti-parallel one, anti-parallel strands. इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स। सो मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन नीड अबाउट द स्पेसिफिसिटी ऑफ दिस एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स एंड द पैरेलल स्ट्रैंड्स। क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं, टू रिमेम्बर अबाउट दीज क्वेश्चंस। सो वी हैव डिस्कस अबाउट द 2 strands ऑफ द डीएनए। One strand which is running in 5' to 3' direction, another strand which is anti-parallel in nature, it is running in 3' to 5' direction. So this is the 1 strand, this is the 2 strand. So here the
DNA is called as a double-stranded DNA. It is also abbreviated as a dsDNA. Means it is the double-stranded DNA. दो strands यहाँ पे present रहते हैं. These two strands are called as a two polynucleotides. और ये दोनों strands एक दूसरे से attach होते हैं via the weak hydrogen bonding between two strands. दो strands के बीच में क्या रहती है? weak hydrogen bonding present रहती है. But in between the two strands there is a complementary base pairings. नाइट्रोजन बेस क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते हैं दो स्ट्रैंड्स के बीच में. इफ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, then you have to solve this question like this. If one strand is given to you in a 3' to 5' orientation, this strand's nucleotide sequence will be given to you. That is A, G, G, C, T, A. Okay? 3' to 5'. Then you have to ask to prepare the next strand, which is the complementary strand of this 3' to 5' end. Remember this one? Draw a first line. अब 3' के अपोजिट मैंने बताया है हमेशा क्या रहता है? At this side 5' is there. 5' के अपोजिट में क्या रहेगा? 3'. ओके? अब यहां से क्या करना है आप लोगों को? कॉम्प्लीमेंट्री स्टार्ट करनी है. ए की कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? डबल बॉन्ड T. देन जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? C. दैट इज द ट्रिपल बॉन्ड C. देन जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? दैट इज द C अगेन. ओके, ट्रिपल बॉन्ड. देन C का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? G. ट्रिपल बॉन्ड. देन टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? A. डबल बॉन्ड. एंड ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? T. डबल बॉन्ड. So you have to make the next strand with the help of this strand and see the basic thing, that is the orientation, in which orientation it was given. इस तरह से आप लोगों को solve करना है. These are the problems which are given in your test books. So refer your test books and draw this structure in your notebook. And next we are studying about the double helical model of the DNA. Double helix model of DNA, which was proposed by two scientists, that is the Watson and Crick. किस तरह से ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ट्विस्ट हो जाते हैं और एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड लैडर. दिस इज कॉल्ड एज अ ट्विस्टेड लैडर स्ट्रक्चर. दिस इज द ट्विस्टेड लैडर स्ट्रक्चर. हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट lecture.